श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। So we saw the first Sunday, first class was on introduction. Last month, that Sunday we saw first key from first chapter. So what is the first key from first chapter we learned? Turn towards guidance to a guru, to a leader, to a teacher. Once you know whom to pick up for guidance in life, if you could get a right guru, right guide, he or she, the guru, will solve all the problems by giving you right kind of direction. But ये प्रश्न है कि हमको हमारे जीवन में इस तरह का गुरु या मार्गदर्शक कैसे मिले, इस पर हम विषय दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। ठीक है। नाउ टुडे वी सा लास्ट टाइम दैट अर्जुन सरेंडर्ड टू भगवान कृष्ण। ही सेड शादी माम। शादी माम माने मुझसे शादी कर लो। शादी इन संस्कृत मीन्स इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट मी। हिंदी मत पढ़ना बीच में। शादी करने के लिए भगवान से कह रहे हैं अर्जुन मुझसे शादी कर लो। तो शादी माम मीनिंग इंस्ट्रक्ट मी। वाई शुड आई इंस्ट्रक्ट यू? अहम ते शिष्यः, आई एम नाउ योर डिसाइपल, देयरफॉर यू इंस्ट्रक्ट मी। आई सरेंडर्ड। वंस ही सरेंडर्ड, देन ओनली भगवान कृष्ण स्टार्टेड गाइडिंग। If you doubt your teacher, if you doubt your guru, if you doubt Bhagavan, nobody will involve, and they are experts, as I told you in the last month also, they are experts in withdrawing. So, Bhagavan Krishna said last month, what was the, you're not working? This is the last slide. What was the remedy? Guidance. Hello, focus. Maharaj, focus is not good. So, when the fogs of confusion blinds our vision, leading to loss of clarity and shattered personality, the only remedy is to turn towards guidance. And one sharp solution for all our life confusions is to secure a life guide, guru. बट को आपके जीवन में अच्छा गुरु मिला तो यू वेरी लकी। अच्छा गुरु माने गुरु अच्छे ही होते हैं, बट नॉट समबडी इन द डिस्गाइज ऑफ गुरु, नॉट गुरु एक्टर acting as guru, but real guru. If you get it, you are blessed, and you are all blessed because you got Gurudev. Today we will see chapter number 2, key number 2 from chapter number 2, second chapter. अब इसको 1.5 घंटा लगेगा। आप बैठेंगे या नहीं तो मैं टुकड़ा टुकड़ा करके आपको धोखा देकर कंप्लीट कर दूँ। जो जवाब देना, फर्स्ट लर्न टू आंसर। बैठो, ठीक है। नौ दे भगवान कृष्णा, सुनिए बाद में वो लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम कहाँ पर है आपको, आदमी के जीवन में वेयर इज अ प्रॉब्लम।
So he is asking, Bhagavan Krishna is asking, Kutastva Kashmalamidam. Kashmala means, we will see what is Kashmala. ये कहाँ से अचानक तेरे मन में ऐसा नपुंसकता आ गई? कुतस्त्वा मीनिंग वेयर डिड इट कम फ्रॉम, कहाँ से आया? अभी सरप्राइजिंग, भगवान कृष्णा नेवर सा सच टिमिडिटी इन अर्जुन. टिमिडिटी, टिमिड, वीक. हाँ सर, ये तुझ में ये कहाँ से आ गया? ऐसा मल, कश्मल कहाँ से आ गया? This is a beautiful thing, discovery. Let us see. So, Arjuna, now don't write, keep on writing. Arjuna calls there, Bhagavan Krishna, मेरे बात सुनिए, my problem I name it. My disease is called Karpanya dosh. My problem is Krupanata. Karpanya dosh. Karpanya dosh माने क्या है? See, it is the wrong identification with people or situation in a given time that leads us to a suspended state of confused existence. माने आप गलत व्यक्ति के साथ या गलत संगठन, गलत परिस्थिति के साथ, उसमें आप एक हो गया समझो. गलत व्यक्ति के साथ अपने भावनाएं, उस व्यक्ति की भावना जितने भी हैं उनके साथ आप अपने भावनाओं को मिला दिया, उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. अब क्या है? ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो गया. अब देखिए, जब आप अर्जुन, ही वेंट एज ए वॉरियर, इज इट नॉट? बट व्हाई शुड ही गो एंड रिप्रेजेंट? ही कैन नॉट बी ए सन और ए फादर और ए ब्रदर और एन अंकल इन द वॉर. Think. Judge. The moment judge sits in his seat in the court, he is a judge. He has to judge. He can't become a father to somebody, a brother to someone, a teacher to someone, a friend to someone. No, I am a judge. The moment a guru assumes his seat and starts speaking, he becomes a teacher, commanding. He is to command respect, and he will not hesitate even to thrash somebody if there is indiscipline, as we saw in the life of Puja Gurudev. So wrong identification means what? गलत लोगों के साथ, गलत स्थिति के साथ, परिस्थिति के साथ, गलत समझ के साथ आप एक हो गया, उसके साथ अपने आप का जो अस्तित्व है उसको खो दिया, और किसी के साथ, किसी व्यक्ति के अभिप्राय के साथ एक हो गया हो, तो फिर गड़बड़ हो गया. तो अर्जुना सेज इट्स ए कार्पण्य दोष. अब कृपणता आ गए तो क्या होगा? इसका प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. अब देखिए, व्हाट इज टू बी डन इज गिवन अप एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इज कंसिडर्ड एज ड्यूटी. मजेदार बात है कि नहीं? टीवी इज टू बी गिवन up, TV seeing, and study has to be adopted. So what is the duty there? Students' duty? Study. What is to be done? Studies. What is not to be done? Watching TV. But what do? Watching TV is considered as duty. Under what pretext? Relaxing. Think about it. If I give up my duty and I adopt something else, it is called the result of Karpanya dosha. See, for example, I gave you, read loudly this one. Once, passion to watch movies, it clouds the exam sense. And under the pretext of relaxation, one goes and watches movie in a wrong time, and which again creates an impact on one's own duty. That is what? Studying of exams. देख कितना गड़बड़ हो गया. देखो, आपके साथ होता है कि नहीं? जवाब तो दो. होता है कि नहीं? हुआ कि नहीं? होगा कि नहीं? अच्छा, ठीक है. नहीं होगा ना? देखते हैं. जितने पेरेंट्स हैं नोट कर लेने का इसके बाद, तो देखना चाहिए. मौका मिल गया उनको पकड़ने के लिए.
दैट मीन्स व्हाट? आप देखिए, जब मनुष्य मोह ममता के विषय को छोड़ने में असमर्थ हो जाए तब उसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सुनिए बेटे, सुनो। जब जिस चीज को नहीं पकड़ना चाहिए उसको पकड़ लिया, जिस समय एक विषय के बारे में नहीं सोचना चाहिए उसी को पकड़ लिया, और ड्यूटी को सामने रखते हुए भी इसको छोड़ने में आप नालायक हो गए, निकम्मा बन गए हैं एकदम। उसको क्या कहते हैं? कार्पण्य दोष। जैसे कि सुबह उठकर पढ़ना कर्तव्य है मगर पलंग छोड़ नहीं सकते, तो क्या हुआ? कार्पण्य दोष हो गया। ये बड़ा बीमार है, बीमारी। माने जो करना है उसको छोड़कर जिसको नहीं करना चाहिए उसके साथ प्रेम हो गया। ज़्यादा खाना ठीक नहीं है मगर ज़्यादा खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसी के साथ हमारा मगर प्यार हो गया। अभी उठो, बहुत खा लिया, कहाँ खाया, अभी तो शुरू किया 20 पराठे के बाद। अब ऐसे ही है लोग, बस 5 मिनट के लिए मम्मी पापा देखने देना टीवी, 5 मिनट, तो फिर 5 मिनट गाड़ी लेके बैठ गए, 5 मिनट हो गया, अब उठो। माने पप्पा 5 मिनट माने थोड़ी 5 मिनट होती है, 5 मिनट का मतलब 5 घंटे। माने आप गलत विषयों के साथ, गलत स्थिति के साथ, गलत व्यवहार के साथ, गलत भावनाओं के साथ, गलत विचारों के साथ यदि आपका प्रेम हो गया हो और उसको छोड़ने में आपको नहीं हो रहा हो, छोड़ नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं हम? टेक्निकल नेम कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोष। अब उसमें दया आ जाती है, बेचारा मैं कभी भी नहीं देखा मूवी, बहुत दिन हो गया। तो ठीक है, बहुत दिन हो गया, तो फिर एग्जाम के पहले क्यों देखते हो? बस अभी याद आया। देखो, और मन भी बड़ा परेशान करता है हमको। तो दैट इज कॉल्ड अर्जुनास बीमारी। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि यहाँ जो कश्मल है, कार्पण्य दोष अर्जुन कहते हैं, और कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, ऐसा जो कश्मलता मन में, ऐसा जो बीमारी जहाँ पर जब नहीं आना चाहिए मन में, when it should not rise in the heart, that time it is coming। पागल है क्या? युद्ध करने आए हो और यहाँ पे दया दिखा रहे हो। जैसे कि एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, पेशेंट बेचारा भी वो एनेस्थीसिया दे दिया और आंख बंद करके सोया है, और पेशेंट उनसे पूछ रहे हैं कि तुम पैसा दोगे कि नहीं, बोलो बता पहले। तो दोगे तो फिर मैं ऑपरेशन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब इस समय वे प्रश्न पूछना गलत है कि नहीं? ये पैसा देगा कि नहीं, बिल देख चुकेगा कि नहीं पैसा बाद में, दैट इज रॉन्ग टाइम। अब यहां तक पहुंचने के बाद फिर वापस जाना चाहते हो, that is the wrong thing। Understood? So therefore कार्पण्य दोष it is कृपणता। और दया, पिटी, गलत जगह पे दया दिखाना, गलत विषयों में दया दिखाना, रुचि दिखाना, अभिरुचि, ये सब गलत है। और पापा मम्मी बच्चों को ऐसे ही खराब कर रहे हैं। जहां पर प्रेम नहीं दिखाना चाहिए वहां प्रेम दिखाते हैं, जहां दिखाना चाहिए वहां नहीं दिखाते। यहीं पे भी ऐसे उदाहरण बहुत सरल मैं चुन चुन कर बोल सकता हूं, एक एक को चुन चुन कर। जैसे शोले में डायलॉग है ना, चुन चुन कर मारूंगा। किसका डायलॉग है था वो? किसने कहा डायलॉग? वीरू। अरे वाह, एक्टर कौन है? एक्टर कौन था? धर्मेंद्र। अब भी मैं मारूंगा चुन चुन कर, उसे मैं भी चुन चुन कर बोल सकता हूं। तो बच्चों खराब कर रहे हैं। तो जहां डंडा दिखाना चाहिए वहां दिखाना चाहिए, ठीक है? ये है व्हाट इज दैट? कार्पण्य दोष। सी अर्जुना सेज इन 2nd chapter, you can read the commentary when you become little bit understanding।
तेरे दिमाग जब आपका बढ़ जाता है ना तब पढ़ सकते हैं, अब मुश्किल लग रहा है। तो भगवान उसको कहते हैं, देखिए कुतस्त्वाकस्मलविदम, सेकंड वर्स में तो अर्जुन पूछते हैं कि क्या हुआ, फिर अर्जुना कहते हैं कि 7वां श्लोक देखिए, सेकंड चैप्टर 7th श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये भगवान, ये कृपणता आ गई मेरे मन में, गलत समय पे गलत विचार, तो आप ये दोष आ गया है, अब उससे, अब भगवान कहते हैं, देखिए पूछते हैं ट्रेजेडी इन थिंकिंग हेडिंग। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आदमी के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जो कष्ट हम उठाते हैं, ट्रेजेडी, संकट काल, संकट का सामना यदि करना पड़ता है हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय किसी के साथ, इसके कारण क्या है, अपना गलत विचार ही इसका कारण है और कोई नहीं है। दुख का कारण क्या है, गलत विचार। ज़्यादा से समय ऐसा नहीं कि बीमार पड़ गया, रोड पर गिर गया, वो भी गलत विचार है, उन्होंने वो साला, वो ऐसे मैंने बात नहीं कर रहा हूँ अभी इस वक्त। अब मैं बताने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय गलत विचारों के साथ ही हम बहुत सारा जीवन में कष्ट उठाते रहते हैं, संकट उठाते रहते हैं। तो अर्जुन का विचार में गलत है कि नहीं? अब बताओ बेटा अर्जुन, तुम कौन हो? मैं क्षत्रिय हूँ। युद्ध भूमि में किस लिए आए हो? लड़ने आए हो। युद्ध में अपोजिट कैंप में कौन है? शत्रु पक्ष है। तो वे शत्रु है, तुम्हारा माँ बाप है या नहीं तो दादाजी है, परदादाजी है, शत्रु के रूप में बैठे हैं। तो तुम अभी कौन हो? योद्धा हो, धर्म के पक्ष में रहकर युद्ध कर रहे हो। तो फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। तुम यहाँ तक किस लिए आया? अपना ही मन में संकल्प करके मैं कौरवों को उड़ा दूंगा, मार दूंगा, ऐसा करके संकल्प करके अधर्म का मैं प्रतिघटन करूंगा करके संकल्प करके तुम यहाँ पर पहुँच गया हो। और यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर गलत विचार आए होने गया, इस गलत विचार के साथ फिर तुम संकट में पड़ गया। अभी इस वक्त तेरा संकट का क्या कारण है? गलत विचार, रॉन्ग थिंकिंग। एंड रॉन्ग थिंकिंग इज ट्रेजेडी इन थिंकिंग। रॉन्ग थिंकिंग इज ट्रेजेडी इन थिंकिंग, वेरी बैड। अब इसीलिए पूछते हैं, ये पढ़ो अभी हम मेरे साथ, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्। I said repeat, useless people. अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान पूछते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुना, now write down the formula. Most of the problems in life are due to wrong thinking. क्या मंत्र मैंने क्या बताया? Most of the problems in life are due to our own wrong thinking. अब इस पर I don't want to stretch now, but this is a formula for you to understand right now. In fact, any problem anywhere in the world is because of somebody else's wrong thinking towards you. Anyway, every problem is wrong thinking only, but we don't analyze now that much. But I have control over my wrong thinking, is it not? I cannot control your wrong thinking, but I can protect myself from your wrong thinking. But I cannot control you. So therefore, Lord Krishna says, Bhagavan says, there is a tragedy in thinking itself. इसलिए कृष्ण asked अर्जुना, भैया क्या है? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, जिसके लिए नहीं रोना चाहिए उसी के लिए तुम रो रहे हो। For those people you are crying, for whom you should not cry for.
You are showing sympathy on wrong people. Can you show sympathy on bacteria? Let it grow, let it grow. And collapsing, let it grow. Poor fellows, let it grow. Huh? Will you grow bacteria? Bacteria culture I am developing inside. Do you show sympathy towards bacteria? Do you show sympathy towards insects and mosquitoes and flies when they disturb you? See? You don't show sympathy. You mercilessly, yeah, go kill them. Or you antibiotic you take and finish them off. Himsa, himsa. Where is ahimsa then here? No. So you should not cry. So galat. So you are not supposed to cry. You are crying for. Like अरे भैया बैक्टीरिया कैसे मारूं मैं इन बच्चों को. You are not supposed to cry for them. You finish them off. They are enemies. So number 1. Number 2. इसके बावजूद माने गलत सोच तो कर रहे हैं आप. मॉडर्न यंगस्टर्स, एनी यंगस्टर विल डू सेम थिंग. पहला क्या करेंगे? गलत सोच. दूसरा क्या करेंगे? आर्गुमेंट. पहला सोच गलत है, उसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं लोग. मेरे विचार करेक्ट है, मारो पकड़ कर ताप पड़े तो. दूसरा प्रॉब्लम है, पहला सोच गलत है और उल्टा कहने लगा मेरी सोच गलत है. बंदूक लेके नहीं आया आज मैं. सो 3 facts of our ignorance. Number 1, read now. We cry or feel extremely sorrow where it is not appropriate at all. अर्जुन ने क्या कहा? क्या किया उन्होंने? रोया. कहाँ पे? युद्ध भूमि में. वहाँ भैया युद्ध भूमि में युद्ध करना है, रोना है क्या बताओ? या क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेलना है, या ना तो मूंगफली खाना है बैठ के सब लोग. पाकिस्तान एंड इंडिया टीम, नो मैच, सब लोग बैठ के मूंगफली खा रहे हैं. फिर हजारों लोग बैठ गए उधर देखने के लिए मूंगफली खाने. सो क्रिकेट मैच, यू गो, ग्राउंड इज ओनली फॉर प्ले. यू गो टू स्कूल फॉर व्हाट? स्टडी और स्लीपिंग? टेल मी. हाँ, बट व्हाई डू स्लीप इन द क्लास? आइदर फिजिकल स्लीप और मेंटल स्लीप और इंटेलेक्चुअल स्लीप. क्या बोल रहे पता नहीं. माइंड इज ऑफ, यू स्लीप. अब रात को जब सोना है, कोई नहीं सोता. सोने से पहले भी कोई एसएमएस आया क्या देखते हैं. आई डोंट रिप्लाई सम एसएमएस. रात को 1 बजे आता है कि व्हाट आर यू डूइंग. रात को 1 बजे. That's why 31st December night, you know, my mobile is always off. सोने नहीं देते लोग. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर फोन करके उठा के भी, इसलिए बंद. नो साइलेंट मोड. भाई जिम्मेदारी बनता है कि अगले दिन कॉल करने का. यू वांट टू रिस्पॉन्ड. कहाँ मिला ही नहीं भाई. मोबाइल ऑफ. कोई कंप्लेंट भी नहीं करता. अब साइलेंट में रख दिया तो फिर स्वामी जी मैंने बोला घंटी बजी, उठाया नहीं आप फोन. बजी थी क्या? हाँ जी, आप देख लीजिए. ऑफ कर दिया. सॉरी कस्टमर, यू आर डायलिंग इज स्विच्ड ऑफ. फोन स्विच ऑफ. फोन स्विच ऑफ और आउट ऑफ रेंज. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज वी क्राई और फील sorrow where it is not required. अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम. इसका मतलब क्या है? You are crying in an inappropriate field. Number 2, उल्टा क्या कर रहे हो? हाई अबाउट अवर विजडम. उसको एक बड़ा ज्ञान बना दिया. ज्ञान. स्वामी जी रोना एक आवश्यक चीज है. रोने से क्या होता है आपको पता है? मुझे नहीं मालूम, मैं बताऊंगा, आप सुनिए. रोने से जो प्रेशर पड़ी है ना अंदर, वो खुल जाता है.
और आदमी के दिल हल्का हो जाता है। अच्छा, इसीलिए रोना जरूरी है, आप समझो। मैं बोलता हूँ रो, मगर मेरे सामने मत रो, सड़क पर बैठ के रो। और मैं कोई बकरा को चुन चुन कर यहाँ पे क्यों आया रोने के लिए? गेट लॉस्ट। तो यू मेक ए मिस्टेक, you bunk the school and big wisdom. Swamiji, no teacher is good in the school. Tell me, why should I go to school? Another logic, another wisdom. Why don't you get up early morning? Ye bataiye, what is the use of getting up early morning? Just tell me, has anybody in the world so far, prove me one case that is benefited out of getting up early morning? Tell me. Tell me. That guy became IAS officer, you know, he used to get up at 10 o'clock in the morning, yet he is IAS. Show me the reason. You start top. Meaning you can't get up lazy fellow, and you start wisdom. You make your own dirty habit, convert that into through a software called corrupt software of mind, convert that into as a wisdom and present it with logic and reason to the world, and expect Bewakoof people to believe you. And they are Bewakoof, therefore they believe. But Bhagavan was not a Bewakoof. He thrashed Arjuna. ये कहानी मेरे सामने मत बनाओ. You speak high about your wisdom as though it is our justifying your sorrows. दुख का समर्थन कर रहे हो, बेवकूफ यहां पे बैठ गए. और तीसरा क्या है? भगवान कहते हैं, रिमेंबर मंत्र बेटे, ए वाइज मैन विल नेवर क्राई. ये प्रमाण है, लिखना, ए वाइज डजंट ग्रीव, बस फुल स्टॉप. ये मंत्र है. नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडित लोग कभी रोते नहीं. बस बताओ आप, यू वांट टू रियली वाइज मैन, डोंट स्पीक लाइक ए वाइज मैन बट बी ए वाइज मैन. व्हाट डिड आई से? डोंट स्पीक लाइक ए वाइज मैन बट बी ए वाइज मैन. Those who feel extraordinarily intelligent, they don't get the notes and write down here. They just listen. बोलो जो बोलना बोलो. We are very great people, you know. But I need to take so much of time to read 20 times Bhagavad Gita to write the point there. So who is more intelligent? You are intelligent. Those who come with note, pen, without notes, as a picnic, such people are of no use. So therefore, don't speak like a wise man, but be a wise man. And another point I said, what is the quality of a wise man? Who is a wise man? One who doesn't grieve, meaning cry. जो कभी रोता नहीं वही ज्ञानी है, बस वही पंडित है. जो हर चीज़ के लिए रोता है ना, वो पंडित नहीं है, बस फुल स्टॉप. किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण. That is the first thing. Tragedy in thinking. So what is the tragedy in thinking? Number one, read out loudly. Number one. Number two. Number three. बस डोंट ग्रीव. इट्स ब्यूटिफुल आंसर. 3. क्यों ऐसा क्यों होता है? ट्रेजेडी इन थिंकिंग. आप देखिए नोट पढ़ो एक. सॉरो इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट और द पास्ट और द प्रेजेंट. बस. कैन यू फील सॉरो विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर? नो. सॉरो मीन्स व्हाट बेटे? सुनो. सॉरो मीन्स शोक. शोक माने जो बीत गया जो काल है उसमें जो अनुभव किया अनुभव, उन अनुभवों को याद करते हुए रोना, इसको कहते हैं शोक. कुछ दुख हुआ, कुछ बीत गया, उस पर हम फिर विचार करने लगे, रोने लगे, उसको हम कहते हैं शोक.
So Bhagavan Krishna says, at any cost, at any time, in any given situation, hey Arjuna, idiot number one you have no chance and you cannot justify your sorrow. I will not approve your crying. Come on, stand up. Don't come to me with a crying face. स्वामी जी बहुत पढ़ना है, फिर आप पढ़ो, आप बोलो बहुत पढ़ना है, बहुत जाओ पढ़ो. Lot of syllabus, on देना है. आप बोलो lot of syllabus is there. Of course you have to study. Get out and go to study. Don't cry. And I hate. Bhagavan Krishna said, I don't like people crying around me. Well, I have never cried. Have you ever seen Bhagavan crying in the entire history? In spite of all difficulties? Have you seen Bhagavan Krishna crying in one corner? What amount of so many Rakshasas, so many devils challenged Bhagavan Krishna. They want to swallow him, kill him, but never ever the smile has gone. Have you seen Bhagavan Krishna went to doctor for medicine? Have you heard about it? Have you ever heard Bhagavan Krishna taking BP tablet? Have you ever heard Bhagavan Krishna crying and withdrawing from duty? Have you ever seen Bhagavan Krishna crying, complaining? No. वो तो भगवान है, तो फिर भगवान ही कह रहे हैं कि तुम रो मत, मैं तेरे साथ हूं. So first thing remember, what is the tragedy? Where is the tragedy? Tragedy in thinking. So Bhagavan Krishna says, you are crying for those things for whom you should not cry for. Number one. Number two is what? Yet you are speaking high and supporting your stupidity. इसका समर्थन दे रहे हो बेवकूफ. तीसरा क्या है? According to me, if you are really a wise person, don't speak like a wise person. If you are a wise person, इसका लक्षण क्या है? You will not grieve. That is the beauty. So what is Bhagavan Krishna said? 3 formulas. Don't cry, don't justify, and a wise one who is the one who doesn't grieve. Full stop. What's the first formula? Don't cry. Don't justify and speak like a wise person, but be a wise person. Third one, a wise man is one who doesn't grieve. You are crying, you are not a wise man. That's it. This is Bhagavan ka formula. So Bhagavan Krishna says, अरे भैया तुम, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुना, don't cry. But what should I do? Number one, he says, work is important. Tell me what is the role, duty of student? Tell me at least 3 duties of a student. Tell me. Study, play. 3 duties of a student. What are the 3 duties of a student? बाबा भयंकर जवाब दे रहे हो, बड़े बड़े डिफिनेशंस हैं. हमारे गुरु जी कहते हैं इन द विक्टोरियस यूथ, आप किताब पढ़ो, युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, तैत्तिरीय उपनिषद. Read Guruji's book now, Victorious Youth. You will find who is an ideal youth. And the sadhu means good. A good man, 3 qualities. Who is an ideal youth? Or who is an ideal student? Ideal student is very simple. Study is number 1. Respecting elders is number 2, including teachers and parents. Not on the respecting celebrates on the road. गली में सेलिब्रेट होगा कोई, उसको सैल्यूट मारना. And घर पर no respect towards parents. That is not the case. Respect. And third important quality of the student is be humble. Because knowledge is the aim. So humility is the virtue. So knowledge is required. Another duty is to remain humble. It's a duty of the student not to flare up. And respecting the elders
and studying. These three are study, respect the elders, and remain humble. When you remain humble, then only respecting elders and study will take place. So Bhagavan Krishna says in the second chapter में, what says? Take refuge in wisdom. क्या बोलते हैं? Work is important, number one. Number two, that work should क्या बेटे? Benefit everybody. Not only me and my work. It should benefit everybody. Third one, live for a cause. Live for country. Live for society. Or simply don't live for yourself. Bhagavan Krishna says, don't live for yourself alone. Only myself, my job, my credit card, my debit card, my car, my flat, my mobile phone, my online transaction, my laptop, and then my house, and then my burial ground, and my ditch, my pit, and my dead body, and my samadhi. That is not. Bhagavan Krishna says, number one, read loudly, work is important. Second one, it should benefit everybody. Third one, live for a cause. It could be country, it could be society, some cause. What are you living for? Cause. And third one, fourth one, friends, when we work for totality, our benefit, our joy, everything is included in it. So देश के लिए काम कर रहे हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, दुनिया के लिए काम करो, ऐसा काम करो कि हमारा जो स्वार्थ है, स्वार्थ करके कोई है ही अलग से नहीं होता. देश के लिए मैं काम कर रहा हूं, उसी में मेरे जो भी चीज चाहिए मुझे लिए वो अपने आप आ जाता है. That is what Bhagavan Krishna said. 4 important principles. Read again. What is important? To work is important. Number 2, that work should benefit everybody, directly or indirectly. Number 3, live for a cause. Fourth one, remember to work for totality, so that remember your requirements are also included in it. Beautiful, no? Excellent, na? Kripana phala hetavaha. Bhagavan Krishna says, cheap are those people who live only for themselves, for cheap fruits and all that. Fruits means some results, only for results, my this one. See, buddhau sharanam anvichya kripana phala hetavaha. These 4 points are taken from Gita 49th chapter sloka. See, little modified for you. What says now? Work is important. Dure nahi avaram karma. But what work is important? Yajnartha, yajna karma is important. So therefore work is important, not simple cheap, only work for results. Second one, what is that? Second point is what? It should? Yeah. Then, living for a cause. And fourth one, 4 points. अब देखिए मैंने क्या कहा फर्स्ट इन सेकंड चैप्टर. फर्स्ट वन व्हाट डिड आई से? सेकंड चैप्टर बिगिनिंग इज व्हाट? आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कहां पर है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी साउंड कार्पण्य दोष. मीन्स व्हाट इज टू बी डन इज गिवन अप, व्हाट इज नॉट टू बी डन इज लव्ड. प्रेम हो गया उसके साथ. पढ़ाई के साथ प्रेम होना चाहिए था, उसके साथ प्रेम नहीं है. युवा केंद्र में आना और रेगुलर प्रेम होना चाहिए, उसके साथ प्रेम नहीं है. फिर घर पर बैठ के गप्पे मारना प्रेम हो गया. माने जो नहीं करना है करना, जो करना है नहीं करना, और जिसको नहीं करना चाहिए उसके साथ प्रेम ज़्यादा हो गया. इसका कारण जो करना है उसको छोड़ दिया. यह है कार्पण्य दोष. फिर बाद में हमने क्या देखा आज? तो भगवान, भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण अर्जुना, सारे संकटों का मूल कारण क्या है? अपना गलत विचार. फर्स्ट सेट ट्राई योर थिंकिंग राइट.
आप बताइए, थिंकिंग राइट, सेटिंग थिंकिंग राइट व्हेन शुड बी डन? बिफोर डेथ, और अभी जीने से पहले या जीने के बाद या मौत के समय में कब होना चाहिए ये? इसीलिए गीता युवाओं के लिए, अर्जुन भी युवा थे, सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर यूथ ओनली. गुड. थर्ड पॉइंट अगर बाद में क्या देखा हमने? ये तो बता दिया. लास्ट वन, व्हाट आर द लास्ट वन? सी 4 facts ट्रेजेडी इन थिंकिंग में. व्हाट आर द 4? व्हाट इज द ट्रेजेडी इन थिंकिंग में? 4 पॉइंट क्या है? जहां पर नहीं रोना है वहां रोते हैं, जहां दुखी नहीं होना चाहिए वहां दुखी हो जाते हैं. वो सोच में प्रॉब्लम है. दूसरा क्या है? हम जस्टिफाई करते हैं हमारे बेवकूफ़ी को. तीसरा क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं वाइज डजंट ग्रीव, फुल स्टॉप. तो और कर्म के बारे में क्या भगवान कहते हैं? वर्क इज इंपॉर्टेंट. हाँ, तो मैंने देखिए बेटा, लास्ट में क्या कहा गुरुदेव भगवान कृष्ण ने? पंडित बनो. क्योंकि पंडित कौन है? जो कभी नहीं रोता. सो पंडित के पास क्या होता है? ज्ञान होता है. इसीलिए ज्ञान के शरण में चले जाओ. हु इज वाइज मैन? इज विजडम. वाई इज अ पंडित? इज बिकॉज इज विजडम. So if you also take support of wisdom, you also become wise. But wisdom कहाँ से आता है? 4 important things. भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मयोग के बारे में, work, your duty is important, should benefit one and all, live for a cause, and when we work for totality, अपने लिए जो जो चाहिए छोटे छोटे मांग, वो अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाता है. किसमें? हमारा कर्म में. ये बता दिया. फिर भगवान कहते हैं बस लास्ट में, फर्स्ट पॉइंट अर्जुन से कहते हैं सेकंड चैप्टर में, अर्जुना व्हाट इज योर ड्यूटी इन ए टाइम एंड प्लेस? देखिए, अब देखिए, यू आर स्टडीइंग फॉर प्रिपरेशन और सम वर्क कर रहे हो. अगले महीने परीक्षा है, उसके लिए तैयारी कर रहे हो. ध्यान से सुना. तो घर पर कोई नहीं है, तो मम्मी बाहर चले गई मार्केट, पापा ऑफिस से नहीं लौटा, भाई बहन सब अपना अपना काम में बाहर गए हैं, तुम अकेले हो घर पर, स्पेंडिंग टाइम एलोन. एट दैट टाइम सम गेस्ट कम्स टू यू हाउस. नोबडी वाज देयर. व्हाट आर यू डूइंग? स्टडीइंग. ओके. बट समबडी केम whom you know, but he came to meet father and mother, elderly man. Now, whatever you are doing, studying, what will you do? Open the door. Uncle, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, भाई बहन नहीं है, get out. सब बोलते हैं. नहीं. Even though you are studying, but that moment which becomes important is receiving the guest, giving him a glass of water, talking to him, trying to engage him till mummy papa comes or somebody comes, and till then either call mummy papa, tell that uncle came, making him comfortable. That forms that prime duty at that time, is it not? Yes or no? अब पहले जो संकल्प किया पढ़ने का, वो टेम्पररीली सस्पेंडेड. Yes or no? Okay. Now second point. Next day morning is exam. Mummy was not there, papa was not there, nobody is at home. That uncle came. Next day morning exam. Then what is your role? Go out, receive him, give him water, give him a book. Uncle, I am preparing for exam. Kindly be comfortable. आपको कुछ भी जरूरी पड़े तो मुझे बुला लेना. I will be sitting in the room. Please uncle. स्विच ऑन टेलीविजन, बट वॉल्यूम थोड़ा कम करके रखता हूँ, आप देख लीजिएगा तब तक न्यूज़. एंड गो बैक टू रूम एंड स्टडी. अब ये नहीं कह सकते अंकुल आ गया, मेरा मुसीबत है, और पढ़ाई चक्के पे चक्का चला गया ऊपर, और फेल होने के बाद भैया अंकुल, वही अंकुल पूछेगा बेटा क्या हुआ एग्जाम? आपके वजह से हमारा सत्यानाश हो गया अंकल, थैंक यू. तो मैंने क्या किया? आप क्यों लाया घर पर?
मुझे क्या मालूम? सो यू शुड नो when to entertain, when not to entertain. टू सिचुएशंस में आपका जो कर्तव्य है, रोल, चेंज और नॉट, चेंज और नॉट. ऐसा अकल आपके पास है? डाउट. डाउट के बाद फुल, FULL. सो फुल ऑफ डाउट्स आई हैव. डाउट फुल. Money in a given time is very beautiful. If you know this, friends, I tell you, you will become great people in India, in the country, in the world, wherever, whatever you are doing, you become something genius in your field. I follow that. कभी लोगों के साथ बैठता हूँ, कभी बोलता हूँ कि आप लड़ो मत, इधर बाहर जाओ, गेट लॉस्ट, अदर चुपचाप कमरे में बैठो, मैं अंदर जा रहा हूँ. आई एम नॉट अवेलेबल. मुझे बुलाना नहीं. कभी कभी बाहर ही बैठता हूँ, कभी अंदर बैठ जाता हूँ. सो दैट डिपेंड अपॉन माई नीड. कभी बाहर आके बात करना पड़ता है, कभी कमर देने से काम हो जाता है. तो जान पहचान लोग आया, कोई बोला यार भाभी मैं बिजी हूँ, बोल दो स्वामी जी बिजी है, बाद में चल जाओ. स्वामी जी और कोई नया आदमी आया आपके लिए, बेचारो आप नहीं जानते कि स्वामी जी का समय क्या है, ये क्या है. देन आई विल एंटरटेन हिम, बट आई टेल हिम 5 minutes आई स्पीक. देन सर यू सिट हियर, आई एम गोइंग अगेन इनसाइड, हाउ टू स्टडी, प्लीज. नो प्रॉब्लम स्वामी जी, प्लीज गो. दैट इज ड्यूटी. बट आई कैनॉट कीप द बोर्ड, नो भाड़ में जाओ करके. आई कैनॉट पुट दैट बोर्ड आउटसाइड. Anybody go and get lost, I am busy. That's wrong thing. Understood now? So know your, Bhagavan Krishna says, dharma. Second chapter में भगवान कहते हैं अर्जुन से, exactly in a given time, you are now as a warrior. You have to fight. You cannot talk philosophy. It's a beautiful thing. वाह, अकल की बात है कि नहीं? दूसरी बात है, भगवान कृष्णा says you cannot, I told you already, justify your sorrow. सबको दुख है. तो क्या हुआ? स्वामी जी दुखी हो गया था, इसलिए एग्जाम फेल हो गया. ओके, आई एक्सेप्टेड. द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू. कैन यू टेल इन इंटरव्यू, आई फेल्ड बिकॉज आई हैड हेडेक. ओ हेडेक यू हैड, नो प्रॉब्लम, स्टिल वी गिव जॉब. ऐसा बोलता है क्या? हेडेक है तो वार्ड में जाओ, इलाज करवाओ, ठीक हो जाओ, फिर बाद में मेरे पास आना. Nobody listens to your excuses. चलो ठीक है, मैंने एक बार बुखार आ गया, स्वामी जी को बुखार आया एक दिन के लिए, तो ठीक है एक दिन छोड़ देंगे लोग. दूसरा दिन बुखार आया तो छोड़ देते हैं. तीसरा दिन बुखार आया छोड़ देते हैं. चौथा दिन बुखार आया छोड़ देते हैं. 5वां दिन ऐसे स्वामी को ट्रांसफर करा दो. हमेशा बुखार ही बुखार है, सोता रहता, काम नहीं करता, चल. इवन आचार्यस आल्सो आर लेफ्ट आउट. So once important is that when duty is there, I was asking someone how many times in little temperature you could control the body, go to the study room and study it. Can you at least experimented it? I mean, have you experimented them? छोटा सा बुखार, एक बार was in somewhere, ऐसे कई बार होता रहता है, but sometime I was 105 temperature and public yajna in Chennai and body is throwing off. Oh my God, क्या कैसे जाए पब्लिक, and that too क्या है, खुला मैदान में, पार्क में. So I took 1 tablet before starting. After that I was doing just before yajna 1 more tablet, and then suppressed the entire temperature and roared, and afterwards again I went to car, another tablet, came to room and collapsed. But the world need not know that you are sick all the time. You cannot justify, मैं बीमार पड़ गया हूँ, बीमार हूँ. So how many times you complain about yourself? Useless people. क्यों नहीं उठा? भाई वीक लग रहा था.
अच्छा, खाया क्यों नहीं था? जीभ ठीक नहीं था। अच्छा, टेस्ट नहीं था इसीलिए नहीं खाया। अच्छा, नहाया क्यों नहीं? बस मन नहीं लगा। पढ़ाया क्यों नहीं? बुद्धि नहीं। फिर डॉक्टर के पास क्यों गया? बस डॉक्टर के पास जाने से स्वामी जी जल्दी इलाज करा देता है। तो स्कूल फिर जाना होता है, तो बीमार एक्शन कर लो। स्ट्रैटेजी तो बंक स्कूल। वंडरफुल फिलॉसफी, इज इट नॉट? भगवान सेज डोंट टॉक अबाउट योर सॉरोस। कोई सुनने वाला नहीं है इधर। Learn the secret of action. What is the number one? Work in the present. Do not dissipate mental energies. No ego in the work. And Bhagavan says, Mate Sangahastu Akarmani. This is the famous sloka of 4 points I told you in a management way. For Karmanyevadikaraste, Ma Paleshu Kadachana, Ma Karma Palaheturbhuhu, Mate Sangahastu Akarmani. 4 beautiful, brilliant points Bhagavan Krishna said. Number one, what is that? Read loudly. Work in the present with your total mind. Number one. Number two, for future result के लिए कर्मण्येव अधिकारः ते फर्स्ट बिट। सेकंड वन क्या है? मा फलेषु कदाचन। डोंट गो इनटू द फ्यूचर, ये मिले क्या, वो मिले क्या, ये मिले वो मिले, जो मिलेगा मिलेगा, बस काम करते रहना। थर्ड वन, डोंट बी ईगोइस्टिक, यू नो, मैंने किया, ये किया। डोंट बूस्ट योर सेल्फ अप लाइक दिस। डोंट शो ऑफ एज यू आर ग्रेट, यू आर नॉट। एंड फोर्थ वन, डोंट गेट अटैच्ड टू लेजीनेस। डोंट लव लेजीनेस। बट व्हाट डू? वी लव लेजीनेस ओनली। मंडे मॉर्निंग स्कूल हो तो फिर नहाते हैं 7 बजे समझो। संडे मॉर्निंग स्कूल नहीं है तो नहाते ही नहीं है। लेट नहीं, बिल्कुल नहाना बंद है। नहाया क्यों स्वामी जी? क्यों रोज नहीं नहाते? आज तो संडे है। संडे में नहाते नहीं, खाते खूब। That is bad. Okay? You don't love laziness. 4 principles. Second chapter में भगवान कैसे है? So what is it now? भगवान says no ego, no chance, and a man of steady wisdom attains the highest. And buddhi, you please create a wisdom. करोगे, बुद्धि में इसका तेज बढ़ाओ, you live happily. Now, last second one. These 2 slokas, what is that? Heading पढ़ो ऊपर. What? How many headings I gave this chapter में? Art of problem discovery, tragedy in thinking, and seek refuge in wisdom. Of course, essentials, to forget about it. Then beware of what you think. Wow. This is the shloka. Repeat after me. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति टुगेदर ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते
संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. इट्स अ ब्यूटिफुल वन. सो फार भगवान ने क्या कहा? फर्स्ट वन, कुतस्त्वा कश्मलविदम. अर्जुन तेरा प्रॉब्लम कहाँ से निकला? अर्जुन क्या कहते हैं? कार्पण्य दोष से निकला. तो भगवान कहते हैं नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन भगवान सेड? refer the notes. भगवान says tragedy in अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाम. 3 पॉइंट. हमने क्या करते हैं? गलत सोचते हैं, फिर दूसरा इसका समर्थन जस्टिफाई करते हैं, उसको उसी को ज्ञान समझते हैं, और तीसरा क्या है? भगवान कहते हैं हु इज द वाइज मैन बट यू आर क्राइंग. अर्जुन यू आर क्राइंग? यस आई एम क्राइंग. Who is the wise man? One who doesn't cry. Therefore, what are you? You are not wise. But what are you doing? But speaking like a wise man. क्या contradiction है तेरे साथ पूरा? Wise man is the one who doesn't cry. Okay. Arjuna is crying. Yes or no? Yes. So Arjuna is wise man? No. Then why the hell are you speaking? You are like wise man. See? Bluff master. सो भगवान कृष्ण से यू आर क्राइंग. सोच में गलत विचार है, मैंने गलत है, विचार में गलत है तेरा. तो इसीलिए क्या हुआ तेरे साथ? क्या हुआ? जो कहीं नहीं करना है उसको करना, जो करना है उसको छोड़ देना, ये ऐसा गलत विचार के साथ हुआ. तो और अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो. बट ज्ञानी जो है, जो कभी रोता नहीं, तू तो रो रहा है और उसका समर्थन भी दे रहा है. ऐसे बातों से और किसी बेवकूफ को घुमाओ, मैं तो भगवान कृष्ण हूं, मुझे घुमा नहीं सकता. तो ऐसा ब्यूटीफुल ना. अगेन शैल रिपीट. हु इज अर्जुन? क्राइंग. हु इज द वाइज मैन? वन हू डजंट क्राई. बट व्हाट आर यू डूइंग? यू आर क्राइंग. देयरफॉर आर यू वाइज मैन? नो. देन व्हाई आर यू स्पीकिंग लाइक ए वाइज मैन? ठीक है ना. तो बाद में क्या हुआ फिर? वी सॉ कर्मा. भगवान कृष्ण says work is important. 4 points. Then afterwards also I told you, now beware of what you think. Now भगवान says अर्जुना तेरे सोच में ही गलत है तो क्या होता? अरे बाबा इसमें बहुत गड़बड़ है. क्या? अल्टीमेटली यू लूज योर सेल्फ. देखिए क्या होगा. नंबर 1, ये दो देखिए, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बट डजंट मैटर. थियरी ऑफ फॉल स्टेप बाय स्टेप. उसी को दाऊ विल एनालाइज नाउ. दैट श्लोक ओनली आई एम एनालाइजिंग. Number 1, what is say? ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते. First one. By constantly thinking of any object, slowly you develop attachment. One girl and boy, first day they met. Hi, hi. Second day also they met. Hi, hi. Third day also they met. Hi, hi. Fourth day also they met. Destiny, क्या करें? प्रारब्ध. Then the boy said, what are you doing? What are you doing? Exchange. Fifth day, गया कॉलेज? हाँ मैं भी गया. तुम? गया. Sixth day, shall we have a cup of tea? Eighth day, shall we have some lunch in a hotel? Ninth day, why don't you come to my house? 10th day, why don't you come to my house? 11th day, I love you. That girl says, so what? So? What are you talking? I love you. Girl says, so what? But I don't love you. Okay, okay. Let us give some time. Okay? Okay. We keep meeting. Then one day she says, I love you.
तो ये बोलता है सो व्हाट। जब मैंने प्यार किया तो मना किया, तब तूने किया तो मैं मना कर रहा हूँ। फिर बाद में कुछ समझौता हो गया, फिर ना दो अलग तो हो गया, मगर ये उसके बारे में सोचती है, वो उसके बारे में सोचता है, तो फिर सोच 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 अटैचमेंट। सो ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः माने आदमी को लगातार सोचने से जिस वस्तु के बारे में तुम सोचते हो उस वस्तु के साथ क्या हो जाता है? अटैचमेंट, संग। संग का मतलब क्या है? तेरे बिना भी क्या जीना वो साथी रे। दैट इज संग। चाहे आदमी हो, मोबाइल फोन हो, तेरे भी क्या ला 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 ला, वो संग। गाड़ी के बिना जी नहीं सकता तो संग हो गया। नींद के बिना सोने में न जी नहीं सकता, संग भाव। खाने के बिना ये खाना वो खाना, स्पेसिफिक खाना, संग भाव। पीने, संग भाव। लड़की या लड़का, संग भाव। पैसा, आदत पड़ गया, होटल जाना, ये जाना, संग भाव। जिसके बारे में ज्यादा सोचते हो, भगवान कहते हैं क्या होगा? अटैचमेंट, यू विल ग्रो। सो बिवेयर व्हाट यू थिंक, स्टेप बाय स्टेप इसका फॉल। आप देखिए, पीछे जाएंगे। दूसरा क्या है? संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः। अटैचमेंट से डिजायर हो गया। डिजायर मीन्स व्हाट? आई वांट, आई वांट। पहला अटैचमेंट, इट लीड्स टू डिजायर। का मतलब क्या है? एट एनी कॉस्ट आई वांट। I want that girl to marry. So at any cost. So you go check and then if she says no, to kill her and you commit suicide or पागल। ऐसा हो रहा है कि नहीं? At any cost I want you. At any cost I want what गाड़ी. At any cost I want mobile. At any cost I want this. Desire. Why? Attachment. So attachment leads to desire. My God. So more disturbance. And desire leads to anger because normally you have 100 desires or 1000 desires. How many are fulfilled? Maybe one. I want my ball ना इस तरफ बेंड होना चाहता हूं, मगर बॉल इधर ही बेंड होते हैं। ये बड़ा डिजायर है, परेशान कर रहे मेरे बाल मेरे को। क्या यार, समझिए, मैं इधर कंघी लगाता हूं, फिर ये बाल उड़कर इधर आ जाता है अपने आप। क्या करें? गुस्सा बढ़ता है कि नहीं? एक दिन सारा बाल हाथ में आ गया, गुस्सा बढ़ता है कि नहीं? तुम लोगों को, मेरे को नहीं। तो ये भी है एक तरह का अटैचमेंट और डिजायर है भैया। और गुस्सा, आई वॉन्ट दैट, गुस्सा आ गया। नहीं आया तो गुस्सा आ गया, तो नहीं मिला तो गुस्सा। तो भगवान कृष्णा से डिजायर लीड्स यू टू एंगर। एंगर माने एनीथिंग, अपने आप को मारने का जो इच्छा, मारने की इच्छा, दूसरों को मारने का इच्छा, ये है वो है, जो भी है डिजायर। Very dangerous. And desire leads to gussa. Always boiling point. 24/7 boiling point. Dangerous. Anger with oneself, anger with the world, anger with mummy, anger with the dog, anger with God, anger with the tree, anger with the vehicle. How many people have seen लात मारते हैं स्कूटर को करके? देखा कि नहीं? वो स्कूटर पर हा हा हा, मुझे क्या होता है, तेरा पैर को नुकसान होता है कि नहीं? और कभी टेबल को मारना बहुत है गुस्सा से। आई सॉ वन यंगस्टर 3 days बिफोर ही मेट मी, ही वाज ऑल राइट। फिर मैंने बोला उधर आ जाओ, कैंप में आ जाओ। इधर नहीं, उधर दूसरा, बहुत 10 साल के पहले की बात है।
बोले ठीक है। तो जब आया ना, बड़ी पट्टी बंध के आया, बोले क्या हुआ? स्वामी जी लड़ाई हो गई। किसके साथ? पप्पा के साथ। क्यों? बट तेरा हाथ तो ठीक था ना उस दिन। हाँ जी ठीक था। फिर क्या हुआ? मैं सच सही कह रहा हूँ, मैं उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल नहीं, हुआ था ये। बोले क्या हुआ? पप्पा ने मना किया। किस लिए? कैंप को आने में। तो दर्पण को मार दिया गुस्से से। तो क्या हुआ? मिरर। आप हिंदी भी नहीं समझते बेवकूफ लोग। दर्पण क्या होता है? मिरर, आईना। आईना, आईना कुड बी एनी ग्लास. Darpan is specifically which reflects your image. So darpan cannot be aina, though darpan is made up of aina. क्या confuse कर रहे हैं आप? By mistake we encouraged you to speak in Hindi. It doesn't mean you torture us like this. तो दर्पण माने which reflects, ठीक है? तो दर्पण को मार दिया, माने मिरर को। फिर क्या हुआ? फिर ये कौन? फिर बत्ती। बट गुस्सा ना, अटैचमेंट। आई वॉन्ट टू गो टू कैंप, समबडी ऑब्जेक्टेड, मारो। पापा को नहीं मार सकते ना। मे बी दी पेस्टेड पप्पा's तस्वीर देयर, और प्लेस पप्पा's तस्वीर बिहाइंड हिम, सो दैट इन द मिरर इट इज सीन ऑपोजिट टू मी। मारो दे, मारो। I am giving good advertisements, na? Good chance, training you how to fight with your father. क्या हुआ फिर? नेक्स्ट वन, डिजायर टू एंगर। बाप रे। क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध में अपने आप को भूल जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे। गुस्सा में आकर ये काम कर दिया, गुस्सा में वैंडलाइजिंग द बूथ्स नाउ इन महाराष्ट्र। जब आज मैंने पढ़ा कि कोई एमएलए को पनिशमेंट मिला, 1 महीना जेल। वाई? 2010 ही ब्लॉक द ट्रैफिक फॉर नो रीजन। जेल भेजा उनको। तो गुस्सा में आदमी को पता नहीं लगता वो क्या करता है। पापा को मार देता, मम्मी को मार देता, टीचर को मार देता है, किसी को भी कोई भी गंदा काम करने का संभावना है। इसीलिए भगवान कहते हैं एंगर लीड्स टू डेल्यूजन, माने मोह में पड़ जाए। फिर मोह तो लॉस ऑफ मेमोरी, भूल गए अपने आप को। अपने आप को भूलने से क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट हो गया। बुद्धि भ्रष्ट होने से क्या हुआ? सत्यानाश हो गया। क्योंकि आदमी मतलब कौन है? हु इज ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रैशनल एनिमल। रैशनल एनिमल क्या हो गया? रैशनड डिस्क्रिमिनेशन हो गया। रैशन डिस्क्रिमिनेशन तो रेशनिंग हो गया, रेशनिंग। बस भगवान कृष्ण कहते हैं भैया बताओ शुरुआत कैसा हुआ? बताओ। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश हो गया, आखिर में सत्यानाश हो गया। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ? पहला पढ़ो। बस आप घर पर बैठ के सोचते रहते हैं कि नहीं बेकार चीजें? पास्ता 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 खाना है। पास्ता खाकर ना बहुत दिन हो गया। पास्ता 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 पास्ता। मुन्नू, हाँ मम्मी पास्ता। मम्मी पास्ता कहाँ है? नहीं पास्ता, नहीं मम्मी सॉरी, मम्मी पास्ता, सॉरी पास्ता। अब मम्मी बोलो, मम्मी पास्ता। क्या बनाया? पास में तो आओ। पास्ता बनाया क्या? पास में तो आओ। पास्ता नहीं, पास में आओ, दिखाऊंगी। तो पास में आओ, मैंने पास्ता सुन लिया। फिर पापा और कुछ सुन लिया। पास हो गया था क्या तू? नहीं वो पास था नहीं, वो तो फेल ही था। अच्छा फेल था, फिर तो क्या चाहिए? पास्ता। देखिए, देन पास्ता आई वांट, देन एंगर बिकॉज पीपल आर नॉट लेटिंग मी टू ईट पास्ता। देन एंगर में, मोह में पड़ गया। देन अपने आप को भूल गया। फिर बाहर गया, फिर चोरी किया, फिर जेल में गया। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। चोरी क्यों किया? बुद्धि बिगड़ गई। क्यों बिगड़ा? पास्ता।
For silly reasons, people are murdering. अभी आंध्रा में बता देखिए क्या क्यों छोटे छोटे कारण के लिए मर रहे लड़ के कोई एजिटेशन नहीं चल रहा है. देखिए, for no reason people are very impatient and thrashing each other. मास बुद्धि बिगड़ गई, डेंजरस है. तो दिस इज कॉल्ड थियरी ऑफ फॉल, स्टेप बाय स्टेप. तो भगवान कृष्ण देते वार्निंग. व्हाट इज इट? बिवेयर ऑफ व्हाट यू थिंक रिपीटेडली. बार बार जो सोचते हैं ना, बिवेयर. अच्छा है तो ठीक है, बच गया. बुरा है तो गया. Think. Beware of what you think. As you think, so you become. Beware but what you think. Very important. ठीक है? समझ आया बेटे? Therefore, as you think, your thoughts make you or mar you. They lead you to either a heaven or a hell. कब? While living. When you are living on earth, either you can be in heaven or you can be in hell. So Bhagavan Krishna says, this is the essence of second chapter in steps and stages. तो बुद्धि को बनाना चाहिए. ए अर्जुन, अपना धर्म को बोलो मत, कर्तव्य को बोलो मत. तो क्या करना चाहिए? एजुकेट योर सेल्फ. नंबर 2 पढ़ो, एम्पावर योर बुद्धि. थर्ड वन, to discipline mind. Fourth one, then, so how many E's are there? E, 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 E. 5 E's. So, Bhagavan Krishna says in second chapter, Arjuna, bigado mat. You got into wrong thinking. First, correct your thinking properly. Beautiful thing. So, this lies in your true welfare. Key number 3 from chapter number 3. Now let us recapitulate what we saw this. Chapter number 2. Kutastva kashmalamidam. What is the problem of Arjuna? कार्पण्य दोष. ठीक है? मोह ममता के विषय को छोड़ने में असमर्थ हो जाए तब उसे कार्पण्य दोष कहते हैं. ठीक है? You fall in love with wrong things and you cannot give up. I give examples. तो भगवान कृष्ण says, you are crying for those things whom you are not, should not cry for. 3 facts. क्या है? You cry, inappropriate, justify. But a wise man is one who doesn't grieve. But you are not a wise man. Okay. So seek refuge. Therefore, रो मत. रोना बंद करना. रोना क्यों हो रहा है बेचे? रोना किस लिए हो रहा है? बिकॉज सोच में, विचार में गलत है, उसको सही करना है. हाँ जी. तो क्या करना है? विजडम चाहिए, बुद्धि. बुद्धि कहाँ से मिलती है? पहले काम करो ठीक से. देन वर्क इज इंपॉर्टेंट. देयरफॉर 49 श्लोका. सो लिविंग फॉर ए कॉज and 4 points we saw this year. Work is important. It should benefit one and all. Third one, living for a cause. And fourth one is, when we work for totality, our needs also are taken care. Therefore, know your role. Don't justify your sorrows. Learn the secret of action. That is, live in the present. Okay? Don't allow your mental energies to waste. Don't be egoistic as you are now, O Arjuna. You are in trouble now. And don't love laziness. 4 points. So, this is of course, then ultimately Bhagavan Krishna warns, beware of what you think. These are the steps. Thinking of objects leads to attachment, attachment to desire, desire to anger, anger to delusion, delusion to loss of memory, loss of memory to destruction of discrimination, destruction of discrimination leads to total ruin. Therefore, beware of what you think repeatedly. For as you think, so you become is the rule.
Your thoughts make you or mar you. They lead you to either heaven or hell while you are very much living. Therefore, educate yourself, empower your buddhi, execute the works through disciplined mind, enjoy then the progress of your life, excel and make others also excel in the world. Don't be selfish. Then only herein lies your true welfare. Any doubts? Any questions? This is the essence of second chapter. अच्छा लगा? काम आएगा? और कुछ? No doubts, no questions? Any questions anywhere? From any corner of the room? Any questions? पहली बार. Any questions? दूसरी बार. Any questions? तीसरी. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. सद्गुरुनाथ महाराज की